جتنے بھی انبیاء و مرسلین ہیں اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ ہمارے حضور کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد 4 پیغمبر اور ہیں جو تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ ان 4 پیغمبروں میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اب چونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو میں نے سوچا کہ ان کے تعلق سے تھوڑی سی بات کی جائے تاکہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے۔ اس دنیا نے ایک دور وہ بھی دیکھا جب سچ بولنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک انسان جو ہماری طرح جیتا تھا، ہماری طرح کھاتا تھا، ہماری طرح پیتا تھا، اس کے اندر بھی وہ کمزوریاں تھیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، مگر پھر بھی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کی حکومت کا عالم یہ تھا کہ دنیا کے ہر حصے کا وہ حاکم تھا۔ دنیا میں کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی جو اس کا مقابلہ کر سکے، اس کے خلاف آواز اٹھا سکے، اور اس کے ڈر اور ظلم کا عالم یہ تھا کہ دنیا میں چند لوگ ایسے تھے جن کو خدا کی پہچان تھی، اور ان چند لوگوں میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، دوسری ان کی والدہ تھی۔ جس شہر میں رہتے تھے اس شہر میں ان دونوں کے علاوہ اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ جس ملک میں رہتے تھے اس ملک میں ان دونوں کے علاوہ اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، اور یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ ان کے پشت و شکم میں آپ کا نور جلوگر رہا، جن کی برکتوں سے اللہ نے ان دونوں کو ایمان عطا فرمایا۔ نمرود نے ایک دن خواب دیکھا، خواب ڈراونا تھا، آپ نے بارہا سنا ہے۔ گھبرا کر اٹھا، کاہنوں کو اکٹھا کیا، نجومیوں کو اکٹھا کیا، اس نے پوچھا یہ بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان قریب شہر بابل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تجھے برباد کر دے گا۔ تو جب آدمی کو طاقت ملتی ہے تو اکثر لوگ متکبر بن جاتے ہیں۔ اس نے تکبرانہ انداز میں کہا حکومت میری ہے، خدا میں ہوں، اور جن خداؤں کو وہ مانتا ہوں وہ میری سنتے ہیں۔ تم کس بچے کی بات کرتے ہو؟ میں ایسے بچے کو دنیا میں آنے نہیں دوں گا۔ ہزاروں ہزار بچے اس نے قتل کرائے، مگر اللہ جس کو رکھتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لائے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو یا تو ان پر القا آیا، یہ انہوں نے سوچا، اور کچھ سوچنے کے بعد بابل کو چھوڑا، جنگلات کو عبور کیا، کوہستانی علاقے میں پہنچی۔ جب پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک غار کے اندر تشریف لے گئیں۔ غار اندھیرا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حسن کا عالم یہ تھا کہ اندھیرا غار ان کے چہرے کے اجالوں میں تبدیل ہو گیا۔ والدہ نے بیٹے کو جنا، جننے کے بعد واپس آئیں، غار کا منہ بند کر دیا۔ پہلے دن آنا چاہا، وقت نہ ملا۔ اگر بچہ پیدا ہو آپ ڈاکٹر سے بات کریں گے تو ڈاکٹر کہیں گے جب نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے ہر 20 منٹ کے بعد اسے دودھ دینا چاہیے۔ بچے کو بھوکا رکھو گے مر بھی سکتا ہے، بچے کو 20 منٹ میں دودھ نہیں دو گے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک دن اپنے بیٹے کو دیکھنے نہ جا سکی، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ دل میں سوچا اے پروردگار عالم، میرے بچے کا کوئی والا نہیں ہے، میرا بچہ بھوکا ہوگا، ایڑیاں لگل رہا ہوگا، رو رہا ہوگا۔ کبھی دل میں وسوسہ آتا ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہو، مگر اس ماں کو پتا نہیں تھا یہ بیٹا انتقال کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں انقلاب کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ 3 دن کا وقت گزر گیا، ماں کے دل میں برے برے خیال آ رہے ہیں۔ کبھی سوچتی ہے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہوگا، کبھی سوچتی ہے میرا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، کبھی سوچتی ہے میرا بیٹا رو رہا ہوگا۔ کہتی ہے کاش میں اپنے بیٹے کے پاس ہوتی تو اپنے بیٹے کو ایڑیاں نہ رگڑنے دیتی، اپنے بیٹے کو رونے نہیں دیتی۔ جب چوتھے دن ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اللہ اکبر اپنے شہر سے نکلی، نکلنے کے بعد جب اس غار میں پہنچی آپ نے غار کے منہ پر رکھا ہوا پتھر ہٹایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نہ مردہ ہے، نہ آپ ایڑیوں کو لگل رہے ہیں، نہ آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، بلکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی
انگشت مبارک میں اللہ اکبر کہیں دودھ پیدا کر دیا تھا، کہیں شہد پیدا کر دیا تھا۔ جب اپنے بچے ابراہیم کو والدہ نے صحیح سلامت دیکھا تو رب کعبہ کا شکر ادا کیا، اے مولا تو وہ ہے جو اپنے بندے کو پالنا بھی جانتا ہے، اپنے بچے کو بچانا بھی جانتا ہے۔ آواز آتی ہے ابراہیم کی والدہ تجھے معلوم نہیں ہے تیرے رب کی شان یہ ہے اگر خدا کسی کو مارنا چاہے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور خدا کسی کو بچانا چاہے تو دنیا میں طاقت نہیں کہ اس بندے کو موت دے سکے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے۔ آواز آتی ہے جو رب بندے کو زندگی دینا جانتا ہے وہ اپنے بندے کو بچانا بھی جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی جتنے بچے سال میں بڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں بڑھتے تھے۔ یہ علماء نے کتب میں بیان فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام 14 مہینے کے ہوئے، دوسروں بچے کے مقابلے 14 سال کے ہوئے، تو ماں نے اپنے بیٹی کی انگلی کو پکڑا، اپنی بستی میں لے گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا میرا خدا کون ہے؟ خدا کو ماننے والے کہاں تھے؟ میرا خدا کون ہے؟ سورج چمک رہا تھا، کسی نے کہا یہ جو سورج چمک رہا ہے یہ تیرا خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مذاق بنایا، سورج ڈوبا، فرمایا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو کسی نے کہا یہ چاند ستارے ہمارے خدا ہیں، چاند ستارے صبح کو دیکھے تو غائب تھے، دن کے اجالے رات کے اندھیروں پر غالب آئے، چاند ستارے غائب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جو دن کے اجالوں میں دم توڑ دے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پیڑ کو خدا بتایا، ماننے سے انکار کر دیا۔ عاجز ہو کر لوگوں نے کہا تو بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جس نے کن کہا اور کائنات کو پیدا فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے تھے۔ ان کا چچا تھا جس کا نام آزر تھا، یہ بتوں کو پوجتا تھا، بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو بیچتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیچنے بت دیے، آپ نے ان کے پیروں میں دھاگا باندھا، رسی باندھی، بازاروں میں گھسیٹنے لگے اور کہنے لگے لوگوں اگر تمہیں برباد ہونا ہو تو انہیں اپنا خدا بنا لو، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی دشمنی پلنے لگی، لوگ حسد کرنے لگے، لوگ جلنے لگے، اللہ اکبر، بازاروں میں باتیں ہونے لگی۔ ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، آزر کا بھتیجا ہے، بڑی عجب عجب باتیں کرتا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے جن خداؤں کو مانا ان کی وحدانیت پر انگلی اٹھاتا ہے، ان کی خدائی پر انگلی اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، لوگ دشمن بننے لگے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے مولا ایک موقع ایسا دے دے کہ میں تمام بابل کے سامنے تیری وحدانیت کا اعلان کر سکوں۔ علماء فرماتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث ہے اسی بابل میں ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا، 7 دن تک وہ میلہ چلتا تھا۔ بابل کے جتنے بوڑھے ہوتے اسی میلے میں جاتے، بابل کی جتنی عورتیں ہوتی اسی میلے میں جاتی، بابل کے جتنے جوان ہوتے اسی میلے میں جاتے۔ جب میلے کا وقت قریب آیا آپ کے والد نے کہا بیٹا تم نہیں جاؤ گے میلہ دیکھنے؟ آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے میں بیمار ہونے والا ہوں۔ جب تمام لوگ اللہ اکبر بابل کے میلے میں شریک ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کاندھے پہ کلہاڑا لیا، لینے کے بعد اس بت کدے میں پہنچے جس بت کدے میں اللہ اکبر بابل کے سب خدا رکھے تھے، جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، جن کو اپنا خدا مانتے تھے، بابل کے اس اللہ اکبر بت کدے میں آپ داخل ہوئے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک بت رکھا ہے جس کے آگے لکھا ہے یہ ہمیں رزق دیتا ہے، کسی بت کے سامنے لکھا ہے یہ ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے، کسی کے سامنے لکھا ہے یہ ہمیں بارش عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بابل کے بت خدے میں رہنے والی پتھروں اور لکڑیوں، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دو، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دو۔ کسی پتھر کی اوقات کیا ہے جو کسی انسان کو کھانا دے سکے، جو کسی انسان کو پانی دے سکے، جو کسی انسان کو زندگی دے سکے؟ ہاں اگر ہمیں کھیتی کو پھاڑ کر زمین کے کلیجے سے اگر کوئی اناج دینے والا ہے تو اس ذات کا نام اللہ ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی سورج کو نکالتا ہے اس ذات کا نام اللہ ہے۔ اگر کوئی مردوں کو زندہ کرتا ہے اس خدا کا نام اللہ ہے۔ اللہ کی قسم تمام خدائی ایک جانب ہو جائے، خدا کا حکم ایک طرف ہو تو خدائی کی نہیں چلے گی بلکہ خدا کا حکم مانا جائے گا، اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے اگر وہ مردے کو زندہ کرے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ زندہ کو مار دے تو دنیا میں کوئی اس کو جلا نہیں سکتا۔ آپ
आपने फरमाया मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ। तो पत्थर क्या खाना देते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी को 2 टुकड़ों में बांटा। सबको तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा बुत था, अल्लाह के नबी की अक्ल दानिश देखें, फहम फिरासत देखें, उसके कांधे पे आपने कुल्हाड़ा रखा। वापस आ, जब लोग आए मेले से वापस, अपने बुतकदे को देखा तो कोहराम मच गया। कहने लगे हमारे खुदाओं के साथ ये कौन कर सकता है? तो किसी ने कहा इब्राहिम नाम का लड़का है, आजर का भतीजा है, हमारे खुदाओं को गालियां देता है, इनके खिलाफ साजिशें करता है, उसे बुलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे बुतकदे के सामने। लोगों ने कहा तूने तोड़ा है? आपने फरमाया हथियार देखो, जिसके पास हथियार होगा वही इन्हें तोड़ने वाला होगा। लोगों ने देखा तो सबके बड़े बुत, सबके सबसे बड़े बुत के कांधे पे रखा था कुल्हाड़ा। आपने फरमाया कुल्हाड़ा जिसके पास है इनका कातिल भी वही है। तो बाबुल के लोग कहने लगे इब्राहिम क्या तू पागल हो गया है? क्या तू दीवाना हो गया है? क्या तुझे मालूम नहीं है तू जिन खुदाओं पर हमारे बहुतान लगा रहा है? ये तो चल नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, ये खा नहीं सकते। अरे इनकी आजिजी का आलम ये है, अगर इन पे मक्खी मच्छर बैठ जाए तो ये उड़ा नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आपने फरमाया ओ बाबुल के लोगों, मैं भी तो यही सबक दे रहा हूँ, जो खुद नहीं खा सकते वो तुम्हें क्या खिलाएंगे? जिनके पास चलने की ताकत नहीं है वो तुम्हें चलने की ताकत क्या देंगे? ऐ लोगों, पत्थरों को खुदा ना मानो, लकड़ियों को खुदा ना मानो, अपने हाथों से बनाई हुई शय को माबूद ना मानो। अगर खुदा मानना है तो मेरे परवरदिगार को मानो। जिस दिन तुमने मेरे खुदा का कलमा पढ़ लिया, काफिर नहीं रहोगे, मोमिन बन के दुनिया में जियोगे। जब इंतकाल करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अब लोगों के पास जवाब तो नहीं था, सीधे पहुंचे नमरूद के पास कि भाई इस नौजवान का इंतजाम करो। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा बता तेरा दावा क्या है? तो आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदे को मुर्दा करता है। अब मुतकब्बिर था, अकल पे पर्दा पड़ा था। 2 कैदियों को इसने बुलाया, एक को सुबह फांसी होनी थी, दूसरे को आजाद होना था। जिसे फांसी होनी थी उसे आजाद कर दिया, जिसे आजाद होना था उसे सूली पर लटका दिया। कहने लगा देख, जिसको जिंदा रहना था मैंने उसे मार दिया, जिसको मरना था उसे आजाद कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, समझ गए ऐसे नहीं समझेगा। आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में छुपाता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल, पूरब में छुपा कर देगा। जवाब नहीं दे पाया तो सजा बोल दी गई, इब्राहिम को आग में जलाया जाएगा। लोगों की दुश्मनी का आलम यह था बाबुल के। औरतों ने अपने जेवर बेच दिए, लकड़ियां खरीदी इब्राहिम को जलाना। 70 साल की औरतें जंगलों से लकड़ियां बीन कर लाती, इब्राहिम को जलाना है। आतिश नमरूद तैयार हुआ, मंजनीक के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाला गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचे नहीं थे। रब ने फरमाया कुल ना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग मेरे इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7 दिन रहे। उलमा ने बयान फरमाए 40 दिन रहे। जलना तो बड़ी बात थी, इब्राहिम के कपड़े का रेशा ना जला। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल कर चले तो रब ने फरमाया बाबुल को छोड़ो, मिस्र की जानिब हिजरत करो। हिजरत करना मोहम्मद अरबी की भी सुन्नत है, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। आप मिस्र पहुंचे। उस वक्त मिस्र में जिसकी हुकूमत थी वो फिरौन का भाई था, वहां का गवर्नर था। उसकी एक बड़ी बुरी खासियत थी, उसके अंदर बददियानती का आलम यह था, उसके शहर से जो भी खूबसूरत औरत निकलती उस पर बुरी नजर रखता। उसके जासूसों ने बताया कि इब्राहिम नाम का बंदा आ रहा है, उसके साथ सारा नाम की औरत है जिसके हुस्न का जवाब नहीं। जब हजरत सारा को उसने अपने पास बुलाया, गलत इरादे से छूना चाहा, अल्लाह ने उसके हाथ में लकवा पैदा कर दिया। ये अल्लाह वालों की बात है। तौबा करने लगा, सारा मुझे माफ कर दे, खुदा से दुआ कर दे, अब मैं कभी बुरी गलत इरादा नहीं करूंगा। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ने हाथ को ठीक कर दिया। फिर नियत बदली, फिर लकवा हो गया, फिर दुआ की, फिर सही हो गया। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मंजर को देख रहे हैं ताकि आप बदगुमान न हो। अल्लाह अकबर। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की। और एक और औरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत सारा को तोहफे में अता फरमाई, जिनका नाम हजरत हाजरा है। उलमा फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 62 साल की हो चुकी थी, मगर कोई बच्चा नहीं हुआ था। कुछ उलमा फरमाते 90 बरस की उम्र हो चुकी थी, मगर कोई बच्चा नहीं हुआ था। दिन रात अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ऐ मौला मुझे औलाद अता फरमा। अगर सफर में है तो दुआ करते, अल्लाह
मुझे औलाद अता फरमा। अगर हजर में है तो दुआ करते, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। उलमा फरमाते हैं रब्बे काबा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 92 साल की उम्र में एक बेटा अता फरमाया और फरमाया इसका नाम इस्माइल रखना। रब ने फरमाया सिर्फ बेटा नहीं दिया है, बल्कि इस बेटे की शान ये है मेरी शरीयत की पाबंदी भी करेगा, मेरी शरीयत को लोगों के सामने लेकर भी जाएगा। इब्राहिम मैंने तुझे वो बेटा दिया है, इसकी शान ये होगी जब तू इससे उसकी जान मांगेगा ये मेरी बारगाह में कुर्बान कर देगा और मैं तेरी नस्ल को और तुझको कयामत तक के लिए जिंदा रखूंगा। इसलिए रब्बे काबा जिससे प्यार करता है उसके जिक्र को कयामत तक के लिए जिंदा फरमा देता है। कितने साल की उम्र में? 92 साल की उम्र में पहला बेटा, इसके अलावा कोई औलाद नहीं। अगर माँ बाप के पास 10 औलादे हों तो माँ बाप को हर किसी से प्यार होता है। बोलो यही बात है कि नहीं है? अभी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद महीने के हुए थे, रब्बे काबा ने फरमाया इब्राहिम अपने बेटे अपनी ज़ौजा को खुद से जुदा करो, अकेला बेटा। लब्बैक कहा, नाम कहा, कहने के बाद अर्ज किया मौला कहाँ छोड़कर आऊं? अल्लाह ने फरमाया सफर करो, हम जहाँ चाहेंगे तुम्हारी बीवी तुम्हारे बेटे को छोड़ने का हुक्म दे देंगे। उलमा फरमाते फिलिस्तीन में रहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छोड़ना कहाँ था? जहाँ आज काबा, जहाँ आज मक्का बसा हुआ है। 400 किलोमीटर का सफर नहीं था, 50-100 किलोमीटर का सफर नहीं था, बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बाइक नहीं थी, कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, बल्कि उस दौर में ऊंटों की सवारी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले अपनी ज़ौजा को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। कितने जंगलात को अबूर किया, कितने पहाड़ों को अबूर किया, कितने दरियाओं को अबूर किया। अल्लाह अकबर, बारिश पड़ी तो चलते रहे, आंधियों का सामना किया। अल्लाह का ये बंदा, अल्लाह का ये रसूल, अल्लाह का ये नबी तमाम मुश्किलात को पार करता हुआ, तमाम परेशानियों से लड़ता हुआ अल्लाह अकबर एक ऐसे मैदान में पहुंचा जहां पर न मक्का था, न मक्की थे, न पानी था, न फल था। अल्लाह अकबर, वहां की धूप की शिद्दत का आलम ये था, लगता था पत्थर जला देंगे। पेड़ों का आलम ये था, पत्ते झड़ चुके थे। बारिश का आलम ये था, सालों साल में कभी कभी होती थी। इस जगह को कुरान ने गैर ज़ीज़रा कहा है, जहां पर न सब्ज़ा उगता था, जहां पर न फल उगता था, जहां पर कभी कभी बारिश होती थी, जहां का पत्थर भी जलाने को दौड़ता था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मैदान में पहुंचे, रब्बे काबा ने फरमाया अपनी बीवी को नीचे उतार दो, अपने बच्चे को खुद से जुदा कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा, बड़े बड़े काले पहाड़ थे, न इंसान था, न इंसान का साया था, न झाड़ियां थी, न पेड़ थे, अगर थे तो सूख चुके थे। आपने अर्ज किया मौला इस मैदान में अपने बच्चों को छोड़ूं, मेरे बच्चों का बनेगा क्या? आवाज आती इब्राहिम घबराता क्यों है? तेरे बच्चों को यहाँ लाने वाला भी खुदा है और तेरे बच्चों को बचाने वाला भी खुदा है। रब ने फरमाया छोड़कर जाओ तो सही, अल्लाह तुम्हारी औलाद की हिफाजत करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा को चंद खजूरें दी, मशकीजे में थोड़ा सा पानी दिया। जब सवारी पर वापस पलटे तो बीवी की आंखों में आंसू आ गए। कहा इब्राहिम क्यों छोड़कर चले हो? जवाब नहीं दिया। बीवी दामन से लिपट गई, कहने लगी इब्राहिम क्यों छोड़कर जा रहे हो? किसके भरोसे छोड़कर चले हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। अल्लाह अल्लाह तीसरी बार आपने खुद कहा ऐ मेरे शोहर के अल्लाह का हुक्म है। आपने फरमाया हाँ ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। इतना कहना था। बीबी भी बड़ी सआदतमंद थी, बड़ी वफादार थी। आपने फरमाया जब खुदा का हुक्म है तो याद रखो हमें बचाने वाला भी खुदा है, अल्लाह हमें जाय नहीं होने देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा से अल्लाह अकबर बिछड़ कर चले। आप तसव्वुर करो किसी इंसान का पता नहीं, न परिंदे हैं न इंसान है, न खाने के लिए फल है, चंद खजूरें थोड़ा सा पानी देकर एक शोहर अपनी बीवी को छोड़कर जा रहा है। एक बाप अपने चंद महीने के बेटे को छोड़कर जा रहा है, जिसको अभी दुनिया की तमीज नहीं। अगर भूख लगती है तो रोकर बताता है माँ मुझे भूख लग रही है, अगर प्यास लगती है तो रोकर बताता है माँ मुझे प्यास लग रही है। आप सोचो तो सही, अल्लाह की कसम 92 साल की उम्र में औलाद मिली, आज उसी औलाद को खुदा के लिए अल्लाह का नबी अल्लाह का रसूल छोड़कर जा रहा है, अल्लाह का पैगंबर छोड़कर जा रहा है। और रब ने फरमाया इब्राहिम जब अपने बच्चे बीवी को छोड़कर आओ तो
पलट कर नहीं देखना है। उलमा फरमाते हैं 2 मील तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते रहे। आपकी बीवी आपके पीछे दौड़ी जाती थी, मगर इब्राहिम ने अपनी बीवी की चीखों को न सुना, अपने बच्चे को पलट कर नहीं देखा। जब बीवी दौड़ते दौड़ते थक गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ों की बुलंदी से उतरे। उतरने के बाद आपने अपनी सवारी से छलांग लगाई और सानू के बल बैठकर अपने हाथों को आसमान की जानिब किया और रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, तेरी मस्जिद हराम के करीब अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा हूँ। अल्लाह मेरी नस्लों को नमाजी बनाना और दुनिया के लोगों के दिलों को इनकी जानिब फेर देना। अल्लाह की कसम 5600 साल का जमाना गुजर गया है, जो बुलंदियां इब्राहिम की औलाद को मिली आज तक किसी को ना मिली। जो तरक्की इब्राहिम के बच्चों ने देखी वो तरक्की किसी ने ना देखी, क्योंकि दूसरी नस्लों में, दूसरी औलादों में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, दूसरी नस्लों में ईसा रूहुल्लाह पैदा हुए, दूसरी नस्लों में हजरत सुलेमान और दाऊद पैदा हुए, मगर इस्माइल की नस्ल का आलम ये है, उनकी नस्ल में वो पैदा हुआ जिसको कुरान ने खातमुन नबीयीन कहा है, जिसको अल्लाह ने सैयदुल मुरसलीन कहा है। हजरत इस्माइल की नस्ल में आमना का बेटा पैदा हुआ और ऐलान कर दिया गया नस्लें बहुत आएंगी, मगर इब्राहिम अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा किसी की औलाद का होगा तो वो औलाद तेरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की होगी। आपने दुआ की मौला इन्हें नमाजी बनाना, अपने दीन की जानिब दिल लगाने वाला बनाना और दुनिया के लोगों के दिलों को इनकी जानिब फेर देना। दुआ की, चले गए वापस अपने घर की जानिब। अकेली औरत, चंद महीने का बच्चा, बड़े बड़े सिया पहाड़। उलमा फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के जिस्म से जो हवा टच होती थी वो दहाड़े मार के रोती थी। ये दर्द का आलम था हजरत हाजरा के। ऐसी बुलंदियां नहीं मिलती, ऐसे कुर्बानी वाजिब नहीं की जाती, ऐसे नहीं कहा जाता हज को जाने वाले हज मुकम्मल नहीं जब तक हाजरा की सुन्नत को अदा न करे। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अकेली औरत, न साया, न इंसान, न खाना, न पानी, चंद महीने के बच्चे को गोद से चिपटाए बैठी है। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। जब रात आई तो हवाएं शोर मचाती थी, पहाड़ खाने को दौड़ते थे, जमीन की तपिश का आलम ये था, रुका नहीं जाता था। मगर हाजरा कहती थी मौला भेजने वाला भी तू है तो बचाने वाला भी तू है। किसी इंसान पे भरोसा नहीं था, अगर भरोसा था तो परवरदिगार पे भरोसा था। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, चौथा दिन आया तो पानी खत्म, खजूरें खत्म। 1-2 दिन और गुजरा तो माँ के पिस्तान का दूध सूख गया, इसलिए कि माँ फाके से थी। अल्लाह अल्लाह जब दूध सूख गया तो बेटे ने रोना शुरू कर दिया। आखिर माँ तो माँ है। अल्लाह अल्लाह, हजरत हाजरा का कलेजा दहल उठा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे को वहीं पर लिटाया। लिटाने के बाद जिस पहाड़ पे बच्चे को लिटाया उसका नाम सफा था। जिस पहाड़ की जानिब दौड़ी उस पहाड़ का नाम मरवा था। मेरे नबी फरमाते हैं सफा से मरवा तक का आपने सफर मुकम्मल किया। आपने दूर दूर तक देखा, न कोई परिंदा था, न पानी का नामो निशान था, न कोई ऐसा पेड़ नजर आता था जिसके पत्तियां हो, जिसके साए में अपने बेटे को रख सके, जिसकी अल्लाह अकबर साया धूप की तमाज़त से आप दोनों को बचा सके। अल्लाह अकबर। अभी पानी तलाश कर रही थी कि माँ को अपने बेटे का ख्याल आया, ख्याल आना था। माँ उतर के आई मरवा पहाड़ से, आकर अपने बेटे को देखा, बेटे को सीधे से चिमटाया, उसकी पेशानी को चूमा। मगर जब बेटे को रोता हुआ देखा, उसके खुश्क होठों को देखा, हाजरा ने फिर दौड़ लगा दी मरवा की जानिब। दूर दूर तक देखा, न कोई इंसान था, न कोई परिंदा था जो इस जानिब इशारा कर सके कि फला जगह पानी है। मेरे नबी फरमाते हैं हजरत हाजरा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 7 चक्कर दोनों पहाड़ों के दरमियान लगाए। जब 7वां चक्कर पूरा हुआ, अल्लाह की कसम ये चक्कर आम चक्कर
नहीं है, ये वो चक्कर है। अगर बूढ़ा जाता है तो सफा मरवा पे दौड़ता है, अगर बच्चा जाता है सफा मरवा पे दौड़ता है, अगर औरत जाती है वो सफा मरवा पे दौड़ती है। अरे इससे बड़ी फजीलत क्या होगी? जब मेरे नबी मदीना से मक्का को हज करने आए थे तो नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा दौड़ो, ये कोई आम सुन्नत नहीं है, ये मेरी दादी हजरत हाजरा की सुन्नत है। तो जिसकी सुन्नत को मोहम्मद अरबी अदा करें और उम्मत से कहें दौड़ना पड़ेगा, सोचो जब सुन्नत का आलम ये है तो हजरत हाजरा का आलम क्या होगा। हजरत हाजरा को अपने बच्चे का ख्याल आया, 7 चक्कर मुकम्मल हो चुके हैं मरवा सफा के, पलट कर आई तो क्या देखा, जिस जगह बच्चे को छोड़ कर आई थी वहां पर परिंदे चहचहा रहे। सुभान अल्लाह, परिंदे उड़ रहे हैं। समझ गई कोई ना कोई कमाल हो चुका है, मोजिजा हो चुका है, करिश्मा हो चुका है। दौड़ कर आई, आका पैगंबर फरमाते हैं जब हजरत हाजरा दौड़ कर आई तो क्या देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों से पानी का चश्मा उबर रहा है। उलमा फरमाते हैं ये पानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ी से निकला था। कुछ उलमा ये भी फरमाते हैं ये पानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पर मारने की वजह से निकला था। हजरत हाजरा दौड़ी दौड़ी गई, आपने क्या देखा, पानी बहा चला जा रहा है, पानी दौड़ा चला जा रहा है। माँ भी डर गई, सोचा अगर पानी यूं ही बहता रहा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं पानी को कहां से पीऊंगी। आपने फरमाया ज़म-ज़म, ये इब्रानी के अल्फाज हैं, अल्लाह की कसम जिसका मतलब है ठहर जा ठहर जा। नबी फरमाते हैं अगर हजरत हाजरा ने पानी को ठहरने नहीं कहा होता तो आज दुनिया के हर कुएं से आबे ज़मज़म निकलता, दुनिया के हर नल से आबे ज़मज़म निकलता, दुनिया के हर जगह से आबे ज़मज़म निकलता। आप सोचो तो सही, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों का आलम ये है तो ज़ात इस्माइल का आलम क्या होगा। और जब इस्माइल की बुलंदी का आलम ये है तो बुलंदी मोहम्मद अरबी का आलम क्या होगा। दुनिया का पानी कहीं भी जाओ कहीं भी पियो, नल का पानी पियो, कुएं का पानी पियो, समरसिबल का पियो, आरओ का पियो, प्यास बुझाएगा मगर भूख नहीं बुझा सकता। गलत तो नहीं है। दुनिया का कोई सा पानी किसी खित्ते का पियो, किसी शहर किसी मुल्क का पियो, प्यास बुझाएगा भूख नहीं। मगर ये जो पानी निकला था ये प्यास भी बुझा रहा था, भूख भी दूर कर रहा था। इसलिए कि अल्लाह की कुदरत का कमाल था, नबी का मोजज़ा था, अल्लाह के करम की बुलंद निशानी थी। अल्लाह अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए, कबील आकर वहां पर बसा। माँ बेटे को भेजना तो बहाना था, असल में अल्लाह को मक्कतुल मुअज़्ज़मा को बसाना था, वहां काबे को तामीर कराना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चंद सालों के बाद फिर वापस लौटे। पलटने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को देखा, कभी अपने कांधे पे सवार कर रहे हैं, कभी सीने से लगा रहे हैं, कभी पेशानी को चूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। आका फरमाते फरिश्तों में चैमे गोइयां होने लगी, लगता है जब से इस्माइल से इब्राहिम मिले हैं अल्लाह की मोहब्बत दिल में कम हो गई है। रब की रहमतें मुस्कुराई, रब ने फरमाया ऐ फरिश्तों शक है तो मेरे बंदे का इम्तिहान ले लो, सब बाद में है, उसके लिए खुदा पहले। आज हम परेशान क्यों हैं? हमारे लिए सब पहले है, अल्लाह की रजा बाद में। इसलिए मस्जिदें खाली, कुरान की तिलावतों की आवाजें नहीं आती, सब कुछ पहले, खुदा की रजा बाद में। रब ने फरमाया इब्राहिम के लिए सब बाद में, माल बाद में, बीवी बाद में, औलाद बाद में, शहर बाद में, मकान बाद में, सबसे पहले खुदा है। फरिश्ते कहने लगे मौला तेरी मर्जी, अगर तू चाहे तो इम्तिहान दिखा दे। अल्लाह के नबी सो रहे, पहली रात आपने देखा, कहने वाला कह रहे इब्राहिम वो चीज पेश करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। सुबह को उठे, 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करके लोगों में तकसीम कर दी। आज बड़े से बड़े लोगों को एक हिस्सा डालने में पसीना आता कि साहब बीवी का हिस्सा करेंगे, बीवी थोड़ी घर की मालिक है, हमने 7 हिस्से कर दिए साहब, रास पूरी हो गया अब नहीं करेंगे। शरीयत किसी के घर की नहीं है, जब तक साहिब निसाब रहोगे हर साल हिस्सा करना वाजिब।
वहाँ नाजिम साहब बैठे, आप इनसे पूछे मसला। जब तक जिंदा रहोगे, घर के मालिक रहोगे, साहिब निसाब रहोगे, हिस्सा करना वाजिब है। अगर घर में 4 बेटे हैं, चारों के पास इतना पैसा है जो साहिब निसाब है, तो 4 हिस्से करना वाजिब है। बीवी का हिस्सा करना है तो अलग से हिस्सा डालो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठ के पहले दिन 100 हिस्से खुदा की बारगाह में 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। दूसरे दिन फिर सोए, इब्राहिम वो चीज पेश करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। फिर सुबह को उठने के बाद फिर 100 ऊंट रब की बारगाह में कुर्बान कर दिए। ऐसा मालदार भी तो हो, ऐसा दिल जिला भी तो हो, ऐसा दिल फेंक भी हो तो जैसे इब्राहिम थे। फिर वही ख्वाब देखा, वो चीज पेश करो जो तुम्हारे नजदीक तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। सुबह को फिर उठे, फिर 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। 3 दिन में 300 ऊंट कुर्बान किए। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, रब्बे काबा ने फरमाया जब तक उम्मत मोहम्मद रहेगी, मैं हर दुफर पर जो साहिब निसाब होगा इब्राहिम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी वाजिब कर दूंगा। अब चौथी रात सोए, वो ख्वाब देखा, कहने वाला कह रहा था इब्राहिम वो चीज पेश करो जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज हो, अपने माल से ज्यादा प्यारी हो। सुबह को उठे, उठने के बाद अल्लाह अकबर दिल में आपने ख्याल किया, मेरे लिए माल से ज्यादा अजीज इस्माइल है, मेरे लिए जान से ज्यादा अजीज इस्माइल है। आप अपनी बीवी के करीब गए, जाने के बाद आपने इरशाद फरमाया ऐ मेरी शरीक हयात, अपने बच्चे को गुस्ल दो, गुस्ल देने के बाद अच्छे से कपड़े पहनाना, इसकी आंखों में सुरमा लगाना, इसके बालों में तेल डालना। आपने अर्ज किया ऐ मेरे सोहर, आखिर क्या वजह है कि हमारे बेटे को कहीं लेकर जाएंगे? आपने अर्ज किया मेरे दोस्त ने दावत की है, बेशक खुदा ने हजरत इब्राहिम को मीना के मैदान में बुलाया था और वो इम्तिहान लेने के लिए जो इससे पहले न आसमान की नजरों ने देखा था, न जमीन के कलेजे ने देखा था, न किसी फरिश्ते ने देखा था। इब्राहिम की मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा था। एक तरफ जान से ज्यादा प्यारा बेटा था, एक तरफ खुदा की मोहब्बत थी। इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा मौला जान मांगेगा जान दूंगा, माल मांगेगा माल दूंगा, औलाद मांगेगा औलाद दूंगा, जो चाहे ले ले, मगर अपने इब्राहिम से कभी नाराज मत होना। अल्लाह का बंदा कहता है दूल्हा बनाना, कपड़े पहनाना, गुसल देना, सुरमा लगाना, सर में तेल डालना। दावत पे जा रहे हो जी, दावत पे जा रहे हो, इसलिए कि दावत का मतलब होता है बुलावा, और बुलाया किसने था? खुदा ने। इब्राहिम खुदा का बुलावा है, दे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान, कर अपने नसीबे को बुलंद। चले बेटे को लेकर, फावड़ा लिया, जो भी उस दौर में जैसा भी होता होगा, रस्सी ली। लेने के बाद अभी घर से निकले थे कि शैतान घर में दाखिल हुआ, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करें। इसलिए लोग कहते हैं कि चोरी के जानवर की कुर्बानी मत करो। लोगों मसला पूछना है तो हमसे पूछो, खुद मसले मत बताओ। कल को अगर कहने वाले कहने लगे नमाज मत पढ़ो, सरकार नहीं चाहती तो क्या नमाज छोड़ोगे? कोई कुछ भी सिखा दे, कोई कुछ भी बता दे, मुसलमान उसे मान लें। जिस चीज को शरीयत ने जायज करार दिया है, दुनिया की कोई हुकूमत उसको बदल नहीं सकती। जुल्म करे तो करे, जुल्म तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे भी हुआ, जुल्म तो मूसा कलीमुल्लाह पे हुआ, और सबसे बढ़ के जुल्म हमारे पैगंबर पर हुआ। आप पढ़े तारीख मुस्तफ़ा को, तारीख इस्लाम को, शिया अबी तालिब में मुस्तफ़ा को 3 साल तक कैद रखा। ये वो दर्द था जो कोई जबान बयान नहीं कर सकती, कोई कलम लिख नहीं सकता। ऐसा ऐसा जुल्म मक्का के लोगों ने किया मुस्तफा, सबको सताया गया, मगर अंबिया यही बोले जान दे देंगे, खुदा की शरीयत को बदलने नहीं देंगे। 70 पैगंबरों को यहूदियों ने कत्ल किया, कत्ल हो गए, मगर बोले मर जाएंगे, खुदा के कानून पे आंच नहीं आने देंगे। यही तो मुसलमान की खासियत है, अगरचे अमल में कमजोर हो मगर शरीयत के रद्दो बदल को बर्दाश्त नहीं करता है। बदअमल होना अलग मामला है, अलग चीज है, मगर मुसलमान ये कहता सब कुछ देंगे मगर खुदा का दिया हुआ ईमान। इंशाल्लाह मैं अपनी तकरीर को आखिरी जुमलों में समेट रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर निकले, इधर घर से निकले, उधर शैतान आ गया, कहने लगा हाजरा क्या तेरी कोई औलाद है?
तो आपने फरमाया मेरा एक बेटा इस्माइल जो अपने बाबा के साथ दावत पे गया है, हंसा, मुस्कुराया, बुजुर्ग की शक्ल में आया था। तो पता चला हर बुजुर्ग वली नहीं होता, शैतान भी होते हैं। हर चमकदार चेहरे वाला बुजुर्ग नहीं होता, शैतान भी होते हैं। कहने लगा हाजिरा सुन, तेरा शोहर किसी दावत पे लेकर नहीं गया है, उसने ख्वाब देखा है, ख्वाब खुदा की जानिब से समझ रहा है, तेरे बेटे को कत्ल करने गया है। हाजिरा बोली तू पागल है, जिस बाप ने बेटे के लिए दिन रात दुआएं की वो अपने बच्चे को कत्ल करेगा? क्या कहीं ऐसा भी होता है कि बाप बेटे को कत्ल करे? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो आपने कहा तुझे मालूम नहीं है, तेरा शोहर ख्वाब को खुदा की जानिब से हुक्म समझ रहा है। हाजरा बोली तुझे पता नहीं है, नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, हकीकत होता है। वो हम लोग हैं जिनके ख्वाब ख्वाब होते हैं, नबी जो ख्वाब देखे वो हकीकत होता है। तो शैतान बोला तेरा शोहर अपने बेटे को तेरे खुदा के ख्वाब की जानिब से कत्ल करने चला है। हाजरा बोली बेटे और भी मिलेंगे, मैं अपने बेटे के मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मेरा बेटा दुनिया के लिए नहीं बल्कि परवरदिगार आलम के लिए जान दे रहा है। ये तो एक इस्माइल है, अगर 1000 होते हाजरा 1000 इस्माइल खुदा के नाम पे कुर्बान कर देती। आपने फरमाया लग तो तू बुजुर्ग रहा है मगर लगता है तू शैतान है। इतना कहा लाहौल पड़ा, लाहौल पढ़ना था शैतान गायब। अगर कभी दिल में वसवसा आए, लोगों के दिल में इस्लाम को लेकर वसवसे आते हैं, जब नई उम्र होती है, नई उम्र तो हमारे दिल में भी आते थे, जब कभी दिल में वसवसा आए उलमा फरमाते लाहौल पढ़ो, बाएं कांधे की जानिब थुतकार दो, शैतान भाग जाएगा। जब लाहौल पड़ा तो शैतान भाग गया। जब माँ के ईमान को देखा तो सोचा बेटा भी नो उम्र है, कम उम्र है, जिंदगी से प्यार करता होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, जाने के बाद कहने लगा ए इस्माइल ये बता क्या तू हसीन नहीं है? आपने फरमाया बेशक खुदा ने मुझे हुस्न दिया है। ये बता कि तुझे अपनी माँ से प्यार नहीं है? आपने अर्ज किया बेशक मुझे मेरी माँ से प्यार है। क्या अपने वालिद को चाहता नहीं है? आपने अर्ज किया बेशक मुझे अपने वालिद से प्यार है। तो उसने कहा ये बता कहाँ जा रहा है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। बस अपनी तकरीर को मैं इख्तिताम कर रहा हूं, तवज्जो से सुने, इनाम देना नहीं, इधर देखकर सुने, समझे? इधर देखकर सुनो, भगदड़ का माहौल मत बनाओ। आखिरी बात निचोड़ पेश कर रहा हूं। आपने फरमाया मुझे अपनी जान से भी प्यार है, अल्लाह ने हुस्न भी दिया है, मुझे अपनी माँ से भी प्यार है। तो उसने कहा तुझे मालूम है तेरा बाप तुझे दावत में नहीं लेकर जा रहा, बल्कि तेरा बाप तुझे कत्ल करने जा रहा है। क्या तुझे इसके हाथ में छुरी नहीं दिखती? क्या तुझे इसके हाथ में रस्सी नहीं दिखती? तो आपने फरमाया कैसी बात करता है, मेरे बाबा की मोहब्बत का आलम ये है, मुझे सीने पर लिटाकर सुलाते हैं, मुझे लोरियां सुनाते हैं, मेरी पेशानी को चूमते हैं, कभी खुद को मुझसे जुदा नहीं करते। जो बाप अपने बेटे से इतना प्यार करता हो, क्या वो बाप अपने बेटे को कत्ल करेगा? तो जान तो शैतान ने क्या कहा था, तेरे खुदा का हुक्म है, तेरा बाप खुदा के हुक्म से तुझे कत्ल करने चला है। अल्लाह की कसम थोड़ी सी उम्र थी, किसी मदरसे में नहीं गए थे, कोई उस्ताद नहीं था, कोई मौलिम नहीं था, एक छोटी उम्र के बच्चे इस्माइल ने कहा था अगर मुझे खुदा ने बुलाया है अपने दीन पे कुर्बान होने के लिए तो ये एक जान है। अल्लाह अगर मुझे 1000 जाने दे, 1000 बार मांगे तो इस्माइल सोचेगा नहीं बल्कि 1000 बार अपने खुदा के नाम पे कुर्बान हो जाएगा। इसलिए कि जान दी भी खुदा ने है, जान है भी खुदा की। इस्माइल कत्ल हो जाएगा मगर उफ तक नहीं करेगा। आपने फरमाया जान दे दूंगा मगर उफ तक, जोर से बोलो, नहीं करूंगा। आपने भी शैतान को भगा दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की, आपने ज्यादा कुछ कहा तो नहीं, कंकरियां मारी। एक जगह बैठा कंकरी मारी, 2 जगह बैठा कंकरी मारी, कंकरी मारते गए। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, रब ने फरमाया हाजी हज करने जाए तो इब्राहिम की सुन्नत को अदा करना। हज में जो सुन्नतें हैं वो इसी घराने की तो हैं।
کوئی حضرت آدم کی سنت ہے، کوئی حضرت حاجرہ کی سنت ہے، کوئی حضرت اسماعیل کی سنت ہے، کوئی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ باپ بیٹے پہنچے مینا کے میدان میں، زور سے بولو کہاں؟ مینا کے میدان میں۔ اب باپ نے مدعا بیان کیا، بیٹا رب کا حکم ہے، تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، رب کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، شہید کرنا چاہتا ہوں، مرضی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بابا آپ سے پہلے تو مجھے شیطان نے بتا دیا، اگر بیٹے کی بات کرو تو یہ تو ایک جان ہے، ہزار ہوں تو تیرے رب کے نام پہ قربان کر دوں، تیرے رب کے دین کے لیے قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بیٹا اپنے باپ سے راضی ہے؟ کہا اے میرے باپ خدا کی جو مرضی ہے اسی میں تیرا بیٹا راضی ہے، تیری جو مرضی ہے اسی میں تیرا بیٹا راضی ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیروں کو رسیوں سے باندھا، اس لیے کہ بیٹا چھٹ پٹائے تو کہیں میرا ایمان متزلزل نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پہ پٹی کو باندھا، جب بیٹے کا لہو بہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کے لہو کو دیکھ کر میرا ایمان متزلزل ہو جائے۔ آپ نے اپنے بابا سے کہا تھا اے میرے بابا پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اے میرے بابا گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹا مینا میں قربان ہوگا مگر قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم زمانے گزرے، احد گزر گئے، کتنے لوگ آئے چلے گئے، مگر اسماعیل کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک اسماعیل زندہ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید رضوان میاں صاحب تھے بھائی۔ تو رب نے فرمایا چھری چلنا نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کا امتحان ابراہیم کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کمزور نہیں تھے، خدا کے پیغمبر تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے، کبھی تھے۔ اور بیٹے کا گلا کیا ہے؟ ریشم کا گلا، حسن و جمال کا پیکر بیٹا۔ چھری کو چلاتے، چھری چلنے کو تیار نہیں، جھنجلا کر پتھر پہ مارا تو پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ علماء یہاں پر ایک روحانی بات بیان فرماتے ہیں، کہتے جب چھری نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے پتھر کو کاٹا تو آپ نے جھنجلا کر کہا او چھری میرے بیٹے کا ریشم جیسا گلا نہیں کٹتا، پتھر کو کاٹ دیا۔ تو چھری نے کہا تھا اسماعیل کاٹو کیسے؟ تو جس خدا کے لیے بیٹا لٹا رہا ہے اس خدا کا حکم ہے کچھ بھی ہو جائے گلے پہ چلنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے گلے پر چلنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تیسری کوشش کی، رب کعبہ نے فرمایا جبریل جلدی سے جاؤ۔ حضرت جبریل نے عرض کیا مولا کہاں جاؤں؟ فرمایا جنت میں جاؤ، اور جس دمبے کو ہم نے حابیل کی قربانی میں قبول کیا تھا اس دمبے کو ہم نے جنت میں پھر سے زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد جنت میں چرنے چھوڑ دیا ہے۔ ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا تھا، وہ حابیل رحمت اللہ علیہ کا دمبا جو آپ کی قربانی میں قبول کیا گیا تھا جنت میں چل رہا تھا۔ فرمایا چھری چلنے سے پہلے جنت سے دمبا لو اور حضرت اسماعیل کو الگ کرو، دمبی کو چھری کے نیچے رکھو۔ حضرت ابراہیم حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنی تیزی صورت کبھی نہ دکھائی تھی جتنی رب کعبہ کے اس حکم پہ دکھائی تھی۔ میں نے جنت سے دمبا لیا، لینے کے بعد میں نے جو دمبے کی میں نے جنت سے دمبا لیا، لینے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو الگ کیا، دمبا وہاں پر رکھ دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی چھری چل گئی۔ آپ نے جب اللہ اکبر پٹی کو اپنی آنکھوں سے جدا کیا تو دمبا ذبح ہو چکا تھا، بیٹا پاس میں کھڑا رو رہا تھا۔ جب بیٹے کو روتا دیکھا تو باپ بھی رونے لگا۔ اور جانتے ہو مینا کے میدان میں صدائیں بلند ہونے لگی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اللہ کی قسم قربانی قبول ہو گئی، رب کی جانب سے ندا آ گئی، قربانی قبول ہو گئی، بیٹا بھی بچ گیا۔ اب تو باپ کو خوش ہونا تھا، بیٹے کو خوش ہونا تھا، مگر دونوں رو رہے ہیں۔ آواز آتے ابراہیم امتحان بھی پورا ہوا، بیٹا بھی بچ گیا، اب آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ عرض کیا مولا کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ تو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا۔ آواز آتی ہے میں نے ابتدا کر دی ہے قربانی کی، تیرے بیٹے اسماعیل سے انتہا کروں گے کربلا میں، اپنے نبی محمد عربی کے بیٹے امام حسین سے۔ تو جو قربانی کی ابتدا مینا میں ہوئی تھی اس قربانی کو خدا نے مکمل کربلا میں کر دیا۔
اللہ فرماتے وذکر فی الکتاب ابراہیم، تم میرے نبی ابراہیم کو قرآن میں یاد کرو، پڑھو، ان کے ذکر کو کرو، یاد کرو انہیں، ان کی زندگی سے سیکھو۔ بے شک وہ سچے نبی ہیں، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اللہ نے جس کو سچا کہا، زمانہ کچھ بھی کہے اسے جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ جسے بلندیاں دیتا ہے اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، اور اللہ جس کو ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ سے دعا ہے میں نے جو کچھ کہا کم علمی کی بنیاد پر کوئی غلطی کی ہو اللہ معاف فرمائے۔ تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔